Hello students, welcome back. So this is our second session for current electricity entrance. In the first lecture we discussed what is current. So current is rate of flow of charge. Then current is when there is a net flow of charge through any cross section of a conductor. In various situations we had different expressions for current. Like current is basically given by charge upon time. Current can also be given by total charge upon total time, and current is nothing but dq by dt also. कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये भी हमने डिस्कस किया था. देयर वाज वन स्पेशल केस आल्सो व्हेन द चार्ज इज परफॉर्मिंग ऑर्बिटल और सर्कुलर मोशन. ड्यूरिंग दैट ऑर्बिटल और सर्कुलर मोशन current is given by charge upon time, that is if it is an electron E by capital T which is time period, E into F that is frequency, EV upon 2 pi r that is in terms of linear velocity and radius. सेम हमने ओमेगा के टर्म में भी एक फॉर्मूला देखा था. Then we moved on to that what happens when there is no potential difference applied across the conductor. The electrons are moving because of thermal speed which is very high, but there is no net flow of charge through any cross section, hence the current is normally zero. Then the same conductor or across the same conductor we applied potential difference. So because of potential difference, one of the end will be at higher potential, the other end will be at lower potential. That would create a potential difference. Now because of that potential difference there was an electric field set up. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. On the way electron first accelerate होते हैं, then they collide with the atoms, energy decreases, again accelerate, again decreases. So that is the reason why we say that on and whole the electron will acquire an average speed with which it is drifting. That average speed or the velocity is the drift velocity, right? So this is what we had discussed. Then we also had formula for drift velocity in terms of relaxation time. Relaxation time was a time interval between two successive collision. दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच के टाइम को हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला था. एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वाज करंट डिवाइडेड बाय NEE, I upon NAE, where that small n is nothing but electron density, which is basically property of material. So electron density is number of free electrons per unit volume. अच्छा, that volume of a conductor जो कि normally हम cylindrical लेते हैं is nothing but area into length. Based on that हम लोगों को अब तक दो फॉर्मूले मिले थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट. ये वाला जो लेक्चर है या सेशन है वो यहीं से आगे कंटिन्यू करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो आई विल ड्रॉ दैट बेसिक डायग्राम वंस अगेन ऑन द बोर्ड. दिस वाज द कंडक्टर. Across the two ends of this conductor we had applied a potential difference. Because of that potential difference, one end of the conductor was at higher potential. एक end higher potential पर था, so this is at higher potential, this was at lower potential. Because of this we had a electric field setup E. Suppose this potential difference is V, length of the conductor was L. Now this E, V and L are related to each other through a formula which says that electric field intensity E is nothing but V by L. Remember this E is nothing but electric field intensity or the strength of the electric field, which is V divided by L. Okay, अब बच्चों ध्यान से सुनना जरा. For drift velocity we have two expressions. Drift velocity is nothing but E into E upon m into t. This t was relaxation time or the time interval between two successive collision. Drift velocity का एक और फॉर्मूला था बच्चों, that was current divided by NAE, where A is area of cross section, N is electron density, and E is nothing but charge of an electron. बच्चों ये दोनों फॉर्मूले में कंपेयर करने वाला हूँ या दोनों को मैं इक्वेट करने वाला हूँ. When I do that, what do I get? Drift velocity, माफ कीजिए, E into E by m into t would be equal to, on the other side I will get I upon NAE. बच्चों मैं आपको डेरिवेशंस नहीं करा रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन बीच में से पूछे जाते हैं और वो पता करने के लिए आपको ये स्टेप्स आने चाहिए. ठीक है, सो अब यहाँ से बच्चों दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई विल राइट V डिवाइडेड बाय L. यस, अभी जो फॉर्मूला बताया था उसको कॉपी किया मैंने, इज इक्वल्स टू I अपॉन NAE.
अब क्या करेंगे, टेक आई ऑन द अदर साइड, सो v डिवाइडेड बाय आई विल बी इक्वल टू m इंटू एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टी। हम सबको बच्चों ये पता है कि ये जो क्वांटिटी होती है v बाय आई, ये अभी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसी को हमने रेजिस्टेंस के नाम से जाना था। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v डिवाइडेड बाय आई दैट इज नथिंग बट r इज इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टी इंटू एल बाई ए। सर इसको पर्पसली ब्रैकेट में क्यों लिखा, समझाता हूँ मैं। सो बच्चों सी दिस m n e एंड t और l और a, ये जो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं, सो दिस इज लेंथ एंड दिस साइड विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर ये वाला क्यों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देख करंट ऐसे एंटर करेगा, सो वो एरिया जो करंट को परपेंडिकुलर है उसी को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, और डिटेल में थोड़ी देर में। सो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एक बार सी, आप कॉपर का अगर वायर लोगे तो अलग अलग कॉपर के वायर का अलग अलग लेंथ और अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल भले ही फिक्स है, बट कंडक्टर की ज्योमेट्री या शेप की वजह से लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी डिफरेंट। तो इसको मैंने अलग रखा, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी हो गई। बाकी जो टर्म्स है बच्चों, कौन, m और e, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, वो भी मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस n इफ यू कैन रिकॉल इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है? यस। और एक टर्म है बच्चों t, दिस t इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंड मोस्टली ये डिपेंड करता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। सर ऐसे कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, खुद ही सोचो बच्चों। व्हाट वाज रिलैक्सेशन टाइम? दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम। सोचो अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा, ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा फास्ट भागेगा, ज़्यादा फास्ट अगर वो भागेगा तो ज़्यादा फटाफट कोलिजन होगा, और जल्दी से अगर कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मटीरियल, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो दिस n is electron density but it depends upon material. This T is relaxation time. Relaxation time. But this relaxation time depends upon temperature. तो बच्चों ये टर्म्स के मतलब मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं, और किस पर डिपेंड करते हो ब्रैकेट में लिखा है। अब ये जो पूरा टर्म है ना बच्चों, m अपॉन एन ई स्क्वायर टी, इसी को हमने रेजिस्टिविटी के नाम से जाना है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टी। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। सो अब मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा, रो। दिस रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, यस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों नाम आपको याद रखने। सो बच्चों एक काम करते हैं, ये रो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, सो आई गेट एन एक्सप्रेशन r इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। हमको ये याद रखना है, r इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। हाँ मुझे पता है आप सबको ये फॉर्मूला पता है, बट फिर भी वी नेवर नो बच्चों कि कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो बीच में से भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू बाय हार्ट दिस डेरिवेशन, जस्ट अंडरस्टैंड द अप्रोच। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले थे मेरे पास, दोनों को मैंने इक्वेट करा, ई को सब्स्टिट्यूट करा, एंड आई गॉट दिस रिलेशन। सो अभी यहाँ से क्या क्या याद रखना है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, रो। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, टेम्परेचर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो। सुना ध्यान से, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टेंस मटेरियल, टेम्परेचर एंड शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। सो यू हैव रो का फॉर्मूला, यू हैव आर का फॉर्मूला। आर वी क्लियर? आया बच्चों समझ में ये? ओके। अब एक और टर्म है बच्चों जो आगे बढ़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए। एक काम करो, आप स्क्रीन को पॉज करो और ये जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन मोर टर्म विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू पॉज द स्क्रीन राइट अवे एंड कॉपी इट डाउन। जो भी बोर्ड पे लिखा है कॉपी कर लो। ओके
So the next term that we should discuss is current density. करंट डेंसिटी. ओके, सुनना बच्चों ध्यान से. करंट डेंसिटी और करंट में फर्क क्या है? तो बोलोगे सर एक करंट डेंसिटी और एक करंट है. करंट डेंसिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया वेयर एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट अपॉन एरिया, बट कंडीशन क्या, एरिया शुड बी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जे को हम लिखते हैं आई डिवाइडेड बाय ए. So basically it is current per unit area. This area is normal to direction of flow of current. This area is normal to the direction of flow of current. अगर वो if area is not normal to the direction of flow of current, then of course आपको एक component लेना पड़ेगा. ठीक है. So उस केस में J will be given by I divided by A cos theta. This is, ये पूरे को हम बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया. इस पूरे को क्या बोलेंगे? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया. अच्छा सर थोड़ा अच्छे से समझाओ. सो बेसिकली चार्ज, आई एम सॉरी, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी. कंडीशन है एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अगर करंट का डायरेक्शन और जो आपने क्रॉस सेक्शन लिया है, एरिया जो लिया, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो आपको नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा. सो इन दैट केस ए कॉस थीटा इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया. कैसे सर? तो देखो इधर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से समझो. देखिए बच्चों, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं ये एक कंडक्टर है और इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग. और आपसे पूछा गया इसमें से करंट डेंसिटी फाइंड करो इस एरिया में से. सो बच्चों ये जो एरिया है वो करंट के फ्लो को नॉर्मली है पूरा का पूरा. सो अभी जे विल बी आई बाई ए. सो अगर ये इक्वेशन 1 है, ओके, या दिस इज द केस जब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, बिकॉज करंट इज और द एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. लेकिन सोचो अगर सिचुएशन ऐसी हो कि ये कंडक्टर और ये वाला शेप ऐसे हो गया मान लो. अब यहां से करंट ऐसे जा रहे वाले. सो करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है बट एरिया देखो, एरिया उसको पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है. तो इस केस में आप क्या करोगे? एरिया का वो कंपोनेंट लोगे, ठीक है, जो यस. सो अब इस वाले एरिया को अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल ऐसे आएगा. सो दिस इज एक्चुअली आप थोड़ा जानते हो, दिस इसी को हम एरिया वेक्टर भी कहते हैं. सो करंट का डायरेक्शन ऐसा है. अब अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन. अब इसका अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो यहां ए कॉस थीटा आएगा. अब मुझे बताओ करंट के अलोंग जो डायरेक्शन है, करंट के अलोंग जो डायरेक्शन है एरिया का, सॉरी करंट के अलोंग जो एरिया का कंपोनेंट है वो कौन है? ए कॉस थीटा. इसलिए यहां पर जे विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा. तो बेसिकली आपको एरिया का वो वाला पार्ट लेना है जो करंट के अलोंग होगा. इज दैट क्लियर? एरिया वेक्टर वाइज में बात करूं तो नॉर्मल होना चाहिए. सो जे इज आई अपॉन एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्ट, मतलब ये इस केस में देखो ये नॉर्मल है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो मुझे उसका नॉर्मल वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा. सो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया. याद रखना वो एरिया करंट के, मतलब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये एरिया वेक्टर होना चाहिए, या दिस शुड बी द एरिया. अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर करंट के अलोंग होगा. ओके, सो अगर ये सिचुएशन है तो जे विल बी आई अपॉन ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा वो कंपोनेंट है एरिया का जो करंट के अलोंग है, या यू कैन से कंपोनेंट ऑफ एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज कंपोनेंट ऑफ एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. चले आगे, ये क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी होगा
कि आपको करंट की इक्वेशन फाइंड करनी होगी. सी जे इज आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा. क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा. सो आई कैन ऑल्सो से दैट करंट इज जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो यहां से ये वापस मैं बताना चाहता हूं मैथमेटिकली कि करंट स्केलर क्वांटिटी है. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर is a vector whose direction is, whose magnitude is same as that of the area. जैसे अगर कोई बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक बुक है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा या कितना होगा. तो इस बुक का मान लो एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये मार्कर की तरफ मैं साइड से बताता हूँ ऐसा. सो ये जो मार्कर है वो एरिया वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पर डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया है. समझ में आया. तो एरिया वेक्टर, जिनको नहीं पता, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ एरिया बट डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया. सो बच्चों ये करंट डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. कुछ और छोटे छोटे टर्म्स है बच्चों जो हमको आने चाहिए बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. बिकॉज ये सारे टॉपिक छोटे होते हैं बट अगर एग्जाम में आया तो हम इनको इतना इंपॉर्टेंस जनरली नहीं देते. ओके, अब बच्चों एक टर्म था रेजिस्टिविटी. आपने ये सुना होगा जी इज 1/r. जी इज कंडक्टेंस एंड सिग्मा इज 1/ρ. इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. ओके, मैं इतना अज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको ये पता है कि रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स, कंडक्टेंस 1/ओम जिसको मोह भी कहते हैं या सीमेंस भी कहते हैं. रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन ओहम इनटू मीटर, ओहम मीटर बोलोगे आप. एंड उसका रेसिप्रोकल मतलब इसका कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा 1/ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. इफ यू वांट आई राइट इट. फॉर रेजिस्टिविटी द यूनिट इज ओम मीटर. तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम को हम मोह लिखते हैं उसका और इनटू मीटर इनवर्स. इज दैट क्लियर. या 1/ओम मीटर लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अब बच्चों हम क्या करने वाले, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि V/L था, करंट डेंसिटी जो कि J है, कंडक्टिविटी जो कि सिग्मा है, इन सबको रिलेट करने वाले हैं. बिकॉज दैट इज वन मोर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो हमको पता होना चाहिए. एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है. There is one more relation between current density, that is J, conductivity, that is sigma, and electric field intensity, that is E. इन सबको रिलेट करने वाला एक और फॉर्मूला जो हमको आना चाहिए. Now before I proceed further, please pause the screen and copy it down quickly. So today basically I am introducing new terms independently. पहले resistivity बताया, फिर current density बताया, अब कंडक्टिविटी बताया, अब सबको रिलेट करने वाला हूँ. सो जिसको ये नहीं पता चला है कि लेक्चर में क्या हो रहा है, हमने 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स डिस्कस किए. रेजिस्टिविटी क्या है उसका फॉर्मूला, करंट डेंसिटी क्या है उसका फॉर्मूला, और कंडक्टिविटी क्या है उसका फॉर्मूला. ठीक है, चलो. देखो जो J is I/A, कैन वी से J इज ऑल्सो इक्वल टू I को लिखा V/R इंटू A, और V को लिख सकता हूं मैं E इंटू L, एंड R को लिख सकते हैं रो L/A इंटू A. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. नहीं सर, करंट इज V/R, ओम्स लॉ बेसिक, एरिया एज इट इज, रेजिस्टेंस इज रो L/A. ये रहा. और ये कैसे लाया सर, याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज V/L. सो कैन वी से V इज इक्वल टू E इंटू L. ओके, सो अब क्या होगा बता, L कैंसिल, A कैंसिल, सो J इक्वल टू E बाई रो.
or can we say that 1 by rho is sigma, so J equal to sigma into E. अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो बोलेंगे इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. यस, सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन, कभी रियलाइज भी नहीं होगा. अगर ये नहीं पता और पूछा था व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो सब लोग ये लिखते हैं वी वेक्टर इज आई इंटू आर वेक्टर, बट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज जे वेक्टर इज सिग्मा इंटू ई वेक्टर. सो जे इज सिग्मा इंटू ई. यहाँ से एक और रिलेशन आ सकता है, सारे फॉर्मूला आपको स्ट्राइक होने चाहिए. एक और रिलेशन क्या होगा, ई विल बी इक्वल टू जे इंटू रो या रो इंटू जे, रो इंटू जे, एंड जे वेक्टर इज सिग्मा इंटू ई वेक्टर. इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. व्हाट डू वी कॉल इट एज, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. चलो सारी चीजें नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. सारी चीजें नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अब तक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी, जो भी छोटे छोटे बेसिक्स थे हमने सारे कवर करे. और एक बात बच्चों, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनकी एक लिस्ट बना लो, सो दैट सारे फॉर्मूले आपको एक जगह पर मिले. अदरवाइज एवरी टाइम यू हैव टू टर्न पेजेस. हाँ, एक फॉर्मूला लिस्ट ही बना लो आप सारे फॉर्मूले की, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के जो अब तक आए. कुछ और छोटी छोटी सिंपल बातें जो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे. अब अपना जो नॉर्मल ओम्स लॉ है, उसमें हम ऐसा कहते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. यहां पर हम R को एक कांस्टेंट की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, पर हमको पता है कि R का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए. सुनना ध्यान से, अगर आपको याद नहीं तो देखो स्टेटमेंट क्या था, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई, तो V इज इक्वल टू आर आई. ये R को हमने क्या बोलकर लाए थे, कॉन्स्टेंट. पर अभी हमने पढ़ा कि R इज रो एल अपॉन ए, जबकि रो जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मटीरियल एंड टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये उसके फिजिकल डायमेंशंस है. इसीलिए ओम्स लॉ में क्या बोलना पड़ता है, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर. मतलब न तो लेंथ चेंज होना चाहिए, न तो ए चेंज होना चाहिए, न तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, न तो मटेरियल चेंज होना चाहिए. न तो लेंथ चेंज होना चाहिए, न तो एरिया चेंज होना चाहिए, न तो मटेरियल चेंज होना चाहिए, न तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए. तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट यहाँ पर आ सकता है. सर क्या बोल रहे हो आप, अरे बाबा V इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई आना चाहिए. तो यहाँ जो भी आएगा वो एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना. पर मैंने क्या पढ़ा है कि जो R है वो खुद कांस्टेंट थोड़ी है, वो तो इतनी सारी बातों पर डिपेंड करता है. तो पहले इन सबको फिक्स करना पड़ेगा. इसीलिए ओम्स लॉ में क्या बोलेंगे, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट, यानी कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर, अगर ये सारी चीजें फिक्स है तो जाके R फिक्स है, तो जाके R कांस्टेंट है, तो जाके ये वैलिड है. आई बात समझ में, याद रखना, सिंपल सी बात है ये. सो नाउ वी हैव V इज इक्वल्स टू आई आर. अब वो सारे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उनको हमने एक कैटेगरी में रखा है, वी कॉल देम एज ओहमिक कंडक्टर. मतलब वो सारे कंडक्टर जो ये रिलेशन फॉलो करेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर, हमने उनका नाम क्या रखा है, ओहमिक कंडक्टर. सो ओहमिक कंडक्टर, द वन विच ओबेज ओम्स लॉ. इनको लीनियर कंडक्टर्स या लीनियर रिलेशनशिप भी ये फॉलो होती है, ऐसा भी एक वर्ड आएगा, वो याद रखना. ओहमिक कंडक्टर्स ओबे लीनियर रिलेशन बिटवीन V एंड I. लीनियर बिकॉज लाइन बनने वाली है. क्यों, ये इक्वेशन देख कौन से फॉर्म में है. आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा आपको पता है. याद है लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स. सो ये जो इक्वेशन है वो उसी फॉर्म में ना, दिस इज y, दिस इज m एंड दिस इज x, y इज इक्वल टू एम एक्स. नाउ y इज इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो वो सारे कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे उनको ओहमिक कंडक्टर बोलेंगे, और उनका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा लीनियर. अब सोचो अगर किसी के लिए ग्राफ लीनियर नहीं है तो वो ओमिक है या नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक है. मेरी बात समझ में आई. इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स, फॉर देम द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज लीनियर. जबकि सेमीकंडक्टर अगर है या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है तो इन सबको नॉन ओमिक कहते हैं, नॉन लीनियर कंडक्टर्स कहते हैं.
क्योंकि v और i का रिलेशन वहां पर लीनियर नहीं होगा। अच्छा, एक और बात बच्चों, so v is equals to i. Now if you plot a graph, जहां पर अगर मैं यहां पर v रखता हूं, यहां पर i रखता हूं, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब अगर ये v और ये i है मुझे बता, तो इस लाइन का स्लोप, आई होप सबको पता है कि स्लोप इज नथिंग बट y डिवाइडेड बाय x, तो स्लोप क्या आएगा यहाँ पर i बाई v। अब बच्चों i बाई v क्या होगा, i डिवाइडेड बाई v, v बाई i इज r ना, तो i बाई v क्या होगा 1 अपॉन r, और 1 अपॉन r क्या था बच्चों, कंडक्टेंस था। सो कई बार आपको लगता है कि v और i का ग्राफ है, उसका स्लोप रेजिस्टेंस होगा, जरूरी नहीं है। इफ दिस इज i, ऑन y एक्सिस इफ यू टेक i, ऑन x एक्सिस इफ यू टेक v, then the slope is I by V 1 by R, which is G, conductance आएगा, and this can also be written as tan of theta. I hope आपको पता है I by V is tan theta। लेकिन सोचो अगर यही ग्राफ ऐसा होता, यहाँ पर I होता और यहाँ पर V होता, ये लाइन ऐसे होती, ये एंगल थीटा होता। अब मैं आपसे पूछता बेटा स्लोप क्या होता, तो आप कहते V by I होता जो R होता, और इस बार tan थीटा विल बी स्लोप। सो इसलिए बाय हार्ट करके मतलब नहीं है बच्चों, आप ग्राफ को अच्छे से देखना कौन से एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है। सो इफ इट इज आई वर्सेस वी का ग्राफ तो सिचुएशन अलग है, इफ इट इज वी वर्सेस आई का ग्राफ सिचुएशन अलग है, बट दोनों ही केस में बच्चों अप्रोच तो सेम है ना। स्लोप फाइंड करो, वो किसी का फॉर्मूला है, उससे कुछ तो मिलेगा, ठीक है। सो आई बाई वी विल गिव यू कंडक्टेंस, आई बाई वी का स्लोप विल गिव यू कंडक्टेंस, वी बाई आई का स्लोप विल गिव यू रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ओके, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज आर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स विच विल हेल्प अस अ लॉट टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, चलो अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद क्वेश्चंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। यस, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से, तो आप सबको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, याद है, बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट। सो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हुआ, यानी कि करंट कम हुआ। ये करंट को जो इम्पिड हो रहा है, ये जो करंट कम हो रहा है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। सो रेजिस्टेंस होता किसकी वजह से है? सो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द वाइब्रेटिंग एटम। अब बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, शाबाश, पर एटम भी की तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एटम का वाइब्रेशन और ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, तो करंट का रिडक्शन और ज़्यादा होगा, यानी करंट और ज़्यादा कम होगा। करंट अगर और ज़्यादा कम होगा तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। सर नहीं समझा, धीरे धीरे। टेम्परेचर बढ़ा, अच्छा पहले रेजिस्टेंस किसकी वजह से? कोलिजन की वजह से। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए? कोलिजन ज़्यादा होना चाहिए। अब सोच, टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, फास्ट भागेगा, एटम के वाइब्रेशन बढ़े, समझ में आ रहा है? एटम का अगर वाइब्रेशंस बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएंगे, चांसेस भी बढ़ रहे हैं और ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, सोच, तो इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा, तो करंट और ज़्यादा कम होगा। करंट के कम होने को ही हमने रेजिस्टेंस बोला है। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब अगर रेजिस्टेंस, मैं मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, क्यों? विल डिस्कस दैट। So in metallic conductors when temperature increases, resistance also increases. अब इससे रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला जो मुझे आना चाहिए या आप सबको पता होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, छोटे छोटे पॉइंट ये सब, ऑन रेजिस्टेंस। सो when temperature increases, resistance increases, remember that. और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने वाला जो फॉर्मूला वो है RT इक्वल टू R0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T माइनस T0।
यहाँ पर R0 इज नॉर्मली रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या बोलोगे इट इज रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर T0. T0 कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर हो सकता है. नॉर्मली हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा. सो T0 इज द रेफरेंस टेम्परेचर जिसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज R0. T इज नया वाला टेम्परेचर जिसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज RT. एंड अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, अब अल्फा का खुद का फॉर्मूला होगा. अच्छा, जैसे बच्चों ये रेजिस्टेंस के लिए ना सेम रो के लिए भी होगा. रिलैक्सेशन टाइम वाला याद आ रहा है, रो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, उसका भी वेरिएशन ऐसा ही आएगा. अब ये जो अल्फा है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. कुछ नहीं समझा, नो टेंशन. इस इक्वेशन से मैंने अल्फा की फॉर्मूला डिराइव करी है. अब आप देखोगे ऊपर न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, तो ये ओम और ये ओम कैंसल, नीचे डिग्री सेल्सियस बचेगा. सो अल्फा की यूनिट क्या होनी चाहिए, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन. अल्फा शुड बी इन पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, यूनिट ऑफ अल्फा. So again, quick revision: temperature increases, energy increases, collision increases, current decreases, resistance increases from metallic conductors. RT is R0 in the bracket 1 plus alpha T minus T0. सेम हम रो के लिए लिख सकते हैं. अल्फा को हम बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ RT माइनस R0 अपॉन R0 इन द ब्रैकेट T माइनस T0. यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसको भी नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी नोट कर लो बच्चों. हाँ, अल्फा को हम बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और यूनिट क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस या तो पर केल्विन. लिख लेना आप. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ठीक है. नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, या आगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लें. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. सारी बातें आप ध्यान से सुनना. देन आई विल बी गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व जो हम लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए. बराबर. सो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये फॉर्मूला मैं अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई करने वाला हूं और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है. अब R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से मुझे क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट. Resistance is inversely proportional to area of cross section provided length is constant. Of course, material वो का वही है, temperature वो का वही है. Rho depends upon material and temperature, याद रखना. अच्छा, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों. एक तो R का L के साथ जो वेरिएशन है वो, सो R1 अपॉन R2 विल बी L1 अपॉन L2. ये कब, जब रो और ए कॉन्स्टेंट है. मैं सिर्फ ओरली मेंशन करूंगा, आपको याद रखना है. R1 upon R2 कैन बी रिटन एज A2 upon A1. ये कब, जब रो और L कांस्टेंट है. R1 upon R2 को लिख सकता हूं मैं R2 upon R1 द होल स्क्वायर. दिस इज व्हेन रो एंड A इज कांस्टेंट. ये कब, जब रो एंड L कांस्टेंट. ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, अज्यूमिंग कि एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं. क्लियर? ठीक है. इतना सिंपल क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, मुझे भी पता है, बट आपको अप्रोच सब पता होनी चाहिए बच्चों. सो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है. अच्छा, अब अगर ऐसा लिखा तो R1 अपॉन R2, सुनना ध्यान से, इज L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1. यानी ये कब, सिर्फ जब रो इज कांस्टेंट.
यानी कि मटेरियल कांस्टेंट रखा आपने और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तब R1/R2 इज L1/L2 इंटू A2/A1। अब रेजिस्टेंस के ही फॉर्मूले को हमको मास के टर्म में भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हाँ, कई बार पूछते हो। तो उससे पहले बच्चों, नॉर्मली हम कंडक्टर ऐसा सिलेंड्रिकल लेते हैं। सो कंडक्टर सिलेंड्रिकल है तो ये लेंथ हुआ, और करंट अगर ऐसे फ्लो होने वाला है तो दिस विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट के फ्लो को जो नॉर्मल एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सो इस केस में हम वॉल्यूम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अब व्हाट इज मास? मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैंने ऊपर से कॉपी किया। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मास को, अगर मैं मास को लिखूंगा m इक्वल्स टू डी इंटू ए इंटू एल। यहां से देख क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ a विल बी मास अपॉन डी एल, और कहने से लेंथ विल बी इक्वल टू मास अपॉन डी ए। सोच अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन में यहां करता तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट r इक्वल्स टू, देखना जरा, रो एल अपॉन एरिया। एरिया की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया तो m अपॉन डी एल, तो d ऊपर चला गया, l ऊपर चला गया। नहीं समझ में आया? चलो वापस से देखते हैं। छोड़ो, आप छोटे बच्चे की तरह करो। रो एल अपॉन एरिया मास अपॉन डी एल। दिस डी एल विल गो इन द न्यूमरेटर, सो आर विल बी इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। अब आपने क्या देखा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर भी पॉसिबल है जब मटेरियल सेम और मास कांस्टेंट। यही आना चाहिए। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्वेश्चन बन के अपने सामने आ सकते हैं। ठीक है, अब सोच इसी को अगर मैं लेंथ को रिप्लेस करता तो और एक फॉर्मूला क्या होगा? आर इक्वल्स टू रो अपॉन ए इंटू एल, एल की जगह पर एम अपॉन डी ए। अब देख क्या आया, आर इक्वल्स टू रो एम अपॉन डी इंटू ए स्क्वायर। अब क्या आया? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। वो कब? जब क्वेश्चन में लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला होगा, मास के बारे में बोला होगा, सो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो आपको पता चलना चाहिए डेटा के हिसाब से। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरियस पॉसिबिलिटीज। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। अब देख, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता है मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है, यहाँ पे लगता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यहाँ पे लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो कौन डिसाइड करेगा? तो द आंसर इज क्वेश्चन की डेटा डिसाइड करेगी, आप और मैं नहीं। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला जो आप सबने जरूर देखा होगा, एक फॉर्मूला जो आप सबने जरूर देखा होगा, या एक सिचुएशन जो आप सबने जरूर देखी होगी, वो ये होती कि वायर इज स्ट्रेच्ड। याद आ रहा है कुछ? व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है ये। सोच अगर मेरे पास एक कॉपर का वायर है और उसको मैं स्ट्रेच करूँ, खींचूं, सो एम आई इंक्रीजिंग दी लेंथ? यस सर। सो जब इसकी लेंथ बढ़ती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाता है। बट सोच कॉपर के वायर को अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो वो कॉपर ही रहेगा। 5 kg के वायर को स्ट्रेच किया तो उसका मास भी सेम रहेगा। सो स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग देर इज नो चेंज इन मटीरियल, डेंसिटी, यू कैन से मास, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती है। किस में चेंज आया? लेंथ में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। इवन वॉल्यूम डज नॉट चेंज। सुना मैंने क्या कहा? जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे तो मटेरियल चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। किस में चेंज होगा? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। अब इस सिचुएशन में मैं रेजिस्टेंस कैसे कैसे निकाल सकता हूँ? सुनना ध्यान से। क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ? सर डायरेक्ट इधर क्यों है? ये सब एक वेरिएबल हो गया, एल वेरिएबल है, तो इन दोनों की तो बात ही नहीं करनी, इसकी बात करनी होगी, रो कांस्टेंट। सो इससे कर सकते हैं। क्या इससे कर सकते हैं? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज मटीरियल मास कांस्टेंट है। इससे कर सकते हैं बिकॉज मटीरियल एंड मास कांस्टेंट है। सो व्हेन वायर इज स्ट्रेच क्या क्या रिलेशन आ सकते हैं? देख इधर ध्यान से, तो रिलेशन आएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। इससे कर सकते हो अगर इन दोनों का नॉलेज है। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर से कर सकते हो अगर लेंथ का नॉलेज है।
R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया स्क्वायर। अगर आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नॉलेज है, या एक चमत्कारी फॉर्मूला, इससे भी कर सकते हो अगर रेडियस का नॉलेज है। सर एरिया तो रेडियस का स्क्वायर होता है ना, इधर एरिया है कि एरिया का स्क्वायर है, तो रेडियस के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो रेज टू 4 होगा। सो व्हेन वायर इज स्ट्रेच, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? L बाई ए से आएगा आंसर 100%, प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर से आएगा, इससे आएगा और इससे आएगा। अब इसमें पता है एक शॉर्टकट है जो आप सबने बाय हार्ट किया होगा। व्हेन वायर, ये एक्चुअल फॉर्मूले इनसे करना चाहिए अगर नहीं समझता तो, और अगर शॉर्ट ट्रिक आपको याद है तो कैसे करोगे? व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट नया वाला लेंथ इज n टाइम्स ऑफ पहले वाला लेंथ, सो नया वाला रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ पहले वाला रेजिस्टेंस। सबको पता होगा ये। If a wire is stretched such that the new length is n times of the original length, then the new resistance is n square times. So ये था रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन अलग अलग फॉर्म में। क्वेश्चंस करोगे तो इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। एक केस मैंने बताया जब वायर को स्ट्रेच किया, तो इससे भी कर सकते हैं, 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 किससे करना है क्वेश्चन डिसाइड करेगा। एक शॉर्ट ट्रिक है कि वायर को स्ट्रेच किया सच दैट लेंथ बिकम्स n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस लेंथ का स्क्वायर n स्क्वायर टाइम्स आएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। एक और है बच्चों, यहां पर जो लिखा है मैं हटा रहा हूं, आप चाहिए तो पॉज करके कॉपी कर लेना। एक और टाइप है व्हेन वायर इज कट, व्हेन वायर इज कट इन n इक्वल पार्ट्स। When wire is cut in n equal parts, तो क्या होगा? अब सिंपल है ना, अगर आप वायर को कट करोगे n इक्वल पार्ट्स में, मुझे एक पता था वायर को कट कर क्या किया, कॉपर के वायर को तोड़ा इसे 2 टुकड़ों में, तो गोल्ड बना नहीं ना, कॉपर ही है, मतलब मटेरियल स्टिल रिमेन्स द सेम। वायर को जब आप कट करते हो तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होता है। सो मटेरियल चेंज नहीं हुआ, कहाँ गया फॉर्मूला? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। याद है जब हम वायर को, चलो मैं ड्रॉ करके समझाता हूं। ये एक वायर था, इसको अगर मैं कट करूं, थोड़ी सी कंजूसी हो रही है, इसको भी हटा देता हूं, आप प्लीज वो कॉपी कर लेना। सो इसको अगर मैंने कट किया तो इस वायर के 2 कंपोनेंट, या सॉरी 2 टुकड़े बने ऐसे। सो 2 ही क्यों? बिकॉज आई हैव कट इनटू 2 पार्ट्स। सी देयर इज नो चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए सेम है, बट इफ यू सी लेंथ एज रिड्यूस्ड, 2 पार्ट में कट किया तो लेंथ L बाई 2। आई एम अज्यूमिंग कि 2 इक्वल पार्ट में किया है। सो अगर n इक्वल पार्ट में किया, n इक्वल पार्ट में, सो जो लेंथ होगा वो, नया जो लेंथ होगा वो ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय n होगा। इसलिए जो नया रेजिस्टेंस होगा, चलो इस भाषा में लिखते हैं, आई न्यू लेंथ इज ऐसा, सो नया रेजिस्टेंस इज, तो हम इसे याद करते, देखो इफ इट इज स्ट्रेच किया तो n स्क्वायर टाइम्स होगा, और कट किया तो डिवाइड बाय n होगा। तो अगर एक वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया लेंथ वाइज, तो उसका रेजिस्टेंस 1/5 होगा। एक वायर को हमने 5 टाइम स्ट्रेच किया तो उसका नया रेजिस्टेंस 25 टाइम्स होगा, 5 स्क्वायर टाइम्स होगा। आर वी क्लियर? समझाइए। सो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उन सबको सॉल्व करेंगे, और जब लाइव डाउट सेशन होगा तो हम उनको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? सो विल स्टॉप फॉर नाउ। एक बार मैं जल्दी रिवीजन दे देता हूँ। करंट डेंसिटी हमने किया, सॉरी रेजिस्टिविटी किया, करंट डेंसिटी हमने किया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमने किया, उसके बाद रेजिस्टेंस का जो या टेम्परेचर का इफेक्ट है वो डिस्कस किया जल्दी से। फिर हमने ये भी देखा कि वायर का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसको हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेंथ के टर्म में, एरिया के टर्म में, मास के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, रेजिस्टिविटी के टर्म में। और 2 केसेस पढ़े, स्ट्रेच करने वाला और कट करने वाला, ठीक है? हमने ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो भी देखा, उसमें कभी स्लोप r होगा, कभी स्लोप 1/r होगा, वो आप और मैं नहीं डिसाइड करते, वो क्वेश्चन की डेटा डिसाइड करेगी वेदर द ग्राफ इज I वर्सेस V और V वर्सेस I। इसलिए लर्न मत करो, अच्छे समझो, ठीक है? चलो, आई विल सेंड अक्रॉस क्वेश्चंस टू यू एंड विल डिस्कस देम इन द लाइव सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।